Hello everyone, I welcome you all in today's class. So from today onwards, we will start the proofs of all theorem. But before beginning the proof, let's do a quick revision of the previous class. Okay. In the previous class, we have discussed about similarity. Okay. The sign of similarity is tilde. Okay. You might have seen this sign in the keyboard of your computer or laptop or somewhere like, okay. This is tilde sign, and tilde sign is used for showing the similarity. Okay. If I say the triangle is like a triangle ABC and then triangle PQR. Now we will be very particular about triangles only. So triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. In this manner you need to pronounce that triangle ABC is similar to triangle PQR. Now what does this mean? अब ये पूरा वही है जो हमने कॉन्फ्रेंस में पढ़ा हुआ है. जिस पैटर्न में हम ट्राइंगल को लिख रहे हैं, व्हाट विल बी द पैटर्न वी आर फॉलोइंग फॉर राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, that will indicate which corresponding angle is equal or which corresponding side is equal. Fine. Likewise, if I draw a pair of triangles, suppose it is ABC and its triangle PQR, consider with the very it's quite monotonous, but okay. So consider the triangles are equilateral. Okay, apart from the drawing. Okay, जो भी drawing हमने की उसको छोड़ के हमें ऐसे consider करना है. That triangle ABC and triangle PQR are the equilateral triangles. So we can write like triangle ABC is similar to triangle PQR, and if they are similar, then from this statement, okay, we can conclude that angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. It is just similar to your congruency. ठीक है, congruency में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं. Okay, so the first thing is the corresponding angle should be equals. Angle A will be equals to angle P, angle B should be equals to angle Q, and angle C should be equals to angle R. Then second thing is that their corresponding sides should be equal. So corresponding proportional, not equal, proportional, or they should be in same ratio. Okay, equal we use a congruency. So corresponding sides, अभी corresponding sides कैसे बनाते हैं देखिए. Corresponding sides AB, BC, AC. Okay, so PQ, QR, PR. Okay, अब ये equal नहीं है. Equal होंगे तो वो तो congruency का पार्ट है. वो क्या होंगे? Proportional होंगे और they will be in the same ratio. So how we can write? We can write like AB upon PQ should be equal to BC upon QR to once again equal AC upon PR. This is known as proportionality. Okay, if this is of 2 units each and this is of 4 units each, then we can say ultimately proportionality they are following, that means 2 by 4, 2 by 4, 2 by 4, and the ratio that we will get is 1 by 2 each, means they are equivalent to 1 by 2. So this is the whole concept of similarity. The reason already we have done. Okay, now let's come to first theorem, very first theorem of similarity. Okay, and it is a name theorem. We have a responsibility, okay, responsibility on our shoulders that we should learn this theorem from the heart. And the reason is because it is given by the famous mathematician Thales. Okay, now who is Thales? कौन है Thales? ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, कि कौन है या कौन थे, क्योंकि वो बहुत कुछ थे, उन्होंने मैथ्स को बहुत कुछ दिया हुआ है.
ये बहुत कम ही लोग जानते हैं that Thales was the person supposed to be or is just considered as that he was the teacher of Pythagoras. Pythagoras जिसका नाम सभी जानते हैं, ठीक है, he was a famous mathematician, और क्योंकि उनका थ्योरम हम बहुत छोटे से यूज करना भी सीख जाते हैं 4th-5th क्लास से, तो पाइथागोरस ये सभी जानते हैं, बट nobody knows कि Thales, he was also a great mathematician and he was the teacher of Pythagoras. ठीक है, उन्होंने कई कंसेप्ट जो है पाइथागोरस को सिखाए हुए हैं और जिन पर आगे पाइथागोरस बढ़ी है, ठीक है। तो हमको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ना है इस थ्योरम को, क्योंकि बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी बहुत अच्छी पिक्चर जो है हाँ अच्छी पिक्चर, ठीक है, बहुत अच्छी पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है, आप इनके बारे में पढ़ें। इन्होंने जो थ्योरम दी उसका नाम दिया विच इज रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और उसको नाम दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं BPT. Okay, BPT, that means basic proportionality theorem. Okay, और sometimes as it is given by Thales, इसको बोलते हैं हम Thales theorem, ठीक है, इसको हम Thales theorem भी बोलते हैं। क्लियर? मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि थेल्स थ्योरम क्या है, या कोई आपको पूछता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। अब क्या है ये थ्योरम, ठीक है, इसका कन्वर्स भी है और एक इसकी मेन थ्योरम भी है। अब क्या है वो थ्योरम, वो समझना है। थेल्स ने कहा कि अगर हम एक्चुअली ये जो थ्योरम है ये सबसे पहले हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं तो इसके प्रूफ बहुत इजी हो जाएंगे बाय यूजिंग दी क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर हम क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी की बात करें तो उसके थ्रू इसका प्रूफ बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन वो क्राइटेरियाज तो इन्होंने नहीं दिए, ठीक है, इसीलिए इसको बिल्कुल बेसिक मानते हुए हम चलते हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको आपकी बुक में जो लिखा हुआ एज इट इज हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जो है इसका प्रूफ बताएंगे क्या है। So the theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. कुछ नहीं समझ आ रहा क्या है क्या नहीं, ठीक, यहाँ समझने की कोशिश। It is a line is drawn parallel to one side of a triangle. फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक कोई ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंसिस्ट करेंगे एज यू आर इन बोर्ड क्लास, फाइन द कॉपी बीइंग चेक्ड इन बोर्ड बाय एनी ऑफ द टीचर, दे गेट द आंसर की फ्रॉम बुक, आपकी बुक से हमको आंसर की मिलता है, तो हम आपको इंसिस्ट करेंगे कि जो नेम थ्योरम, स्पेशली नेम थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फिगर, उनका प्रूफ एग्जैक्टली आप बुक के जैसा ही करें, ठीक है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स इसको थोड़ा सा अलग बता देते हैं, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि इसकी जो आंसर की होती है, इसकी जो चेकिंग होती है वो आपको बुक से ही होती है, ठीक है। तो आपको जो भी आप इसमें पैटर्न यूज कर रहे हो इट शुड बी एज पर योर एनसीईआरटी बुक ओनली, ठीक। तो इसका नाम दिया गया है ABC. Okay, so if we draw a line parallel to one side of a triangle, अब किसी भी साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आप AB के पैरेलल भी कर सकते हो, BC के पैरेलल भी कर सकते हो, AC के पैरेलल भी कर सकते हो। Now here we have taken a line, ठीक है, parallel to BC, that is the base, name DE, or we can say as per your book, intersecting other two sides, ठीक है, intersecting other two sides at two different point or two distinct point D and E. So two distinct points are D and E at the respective sides AB and AC, ठीक है। दो लाइन, सिर्फ दो लाइन समझ। फर्स्ट इज, if we draw
a line parallel to any one side of a triangle, fine, intersecting the remaining two sides at two distinct points, suppose D and E, then then the remaining sides, means the two remaining sides which is being divided, then this division of sides will be proportional. ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल इज द सेम थिंग, ठीक है, समझ आया। तो गिवन आपके पास क्या होगा, देखो कभी भी कोई प्रूफ करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन, आपको गिवन लिखना होता है कि गिवन क्या है, जो स्टेटमेंट आपने लिखा उसमें आपको क्या समझ आया, क्या गिवन है। सेकंड होता है टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन इज required, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, and the last thing that we use is proof. These 4 steps are important for proving any theorem. क्या इनका मतलब है पहले धीरे समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी बोल चुके हैं, हालांकि सभी बच्चों को पता होता है। गिवन मीन्स जो भी स्टेटमेंट हमको दिया है उससे हमको क्या हिंट दी हुई, ठीक है, क्या गिवन है। टू प्रूव, अब देखो प्रूव एंड प्रूफ, ठीक है, प्रूफ दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझ। प्रूफ मतलब होता है आपको, जैसे हमने बोला कि हमको जमाने को ये प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना, ठीक है, इसको हम एकदम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड आता है सिद्ध करना है, कि आपको क्या सिद्ध करना, आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है, तो होता है प्रूफ मीन्स होता है means a procedure, it's a complete procedure, fine, by which we are proving something. Are you getting my point? Proof is the means a kind of procedure that we follow, okay, that we follow to prove something, okay, जिसको हम कोई भी तथ्य को लेकर के, कोई भी अपने लॉजिक्स को लेकर के, कोई दूसरी प्रॉपर्टीज को लेकर के हम चलते हैं, पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रूव करते हैं। Right? So this is proof, ठीक है, कि हम क्या दिखाना, मतलब जो भी हमारा प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज प्रूफ, एंड प्रूफ मीन्स इन शॉर्ट व्हाटएवर वी वांट टू प्रूव, ओके। एंड कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, अब कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड क्या सेंस, जो भी आपको गिवन है, गिवन आपको जो है वो गिवन में क्या होता है, समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज, दैट्स व्हाई वी से कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। Sometimes it may happen that things are not sufficient, okay, insufficient for us to prove something, okay, and in that case we construct, okay, we take from ourselves to prove something, okay। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से कुछ कंस्ट्रक्शन लेते हैं, and now one by one we will try to fill up these 4 things. So given आप क्या लिखेंगे, given is a triangle ABC in which DE is parallel to BC, okay, समझ आया क्या लिखना है आपको, triangle ABC in which DE is parallel to BC, and ठीक है, ये आपका हो गया। अब टू प्रूफ आपको करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ठीक है, ये आपका टू प्रूफ, ओके। यहाँ आपने क्या लिखा, देयर इज अ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल विद BC, ये आपका इन शॉर्ट गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, सो यस हियर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि वेरी फर्स्ट थ्योरम है, अगर ये हमको क्राइटेरियाज के बाद मिलता तो हमको कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल पहले क्राइटेरिया से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ क्राइटेरियाज यूज नहीं कर सकते तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन इज विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, सपोज, ओके, DM is a perpendicular and
end is also perpendicular. And one more thing that we'll do, that we'll join BE and CB. Understood? This is construction. These are the constructions that we have done. We have drawn DM. Okay, in short I'm writing DM and EN are the perpendiculars, and we have joined what? CV and BE. Okay, this is what we have done. After this comes the proof. बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब बस यही इम्पोर्टेंट, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या करना है वो समझिए जरा। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो बेसिक जो या फंडामेंटल जो रूल है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लेके हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो एडी जो दिख रहा है वो ये इस छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बीडी, बीडी आप देखो तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। देन एई फिर से ये छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट दिख रहा है, और ये आपका सीई ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट दिख रहा है। मतलब हमको कुछ ऐसे करना है, जैसे कि अभी बोला हमने कि हम यहाँ पर यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से करना है कि ये दोनों ट्राइंगल का हम यूज करेंगे और साइड्स भी हमको। तो शायद आपको याद हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव कंस्ट्रक्टेड द परपेंडिकुलर्स और द हाइट। तो ध्यान से देखें, पहले हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ADEN the triangle, ठीक है। In short I am proving, ठीक है, as per these steps everything very clearly is given in your book, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम प्रूफ आपको इन शॉर्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। आप लिखना चाह रहे हो तो आप इसको एज इट इज अपनी बुक से लिख लो, ठीक है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज यू कैन राइट, ठीक है। ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस आई एम राइटिंग ओवर हियर, बिकॉज़ somewhat you can understand that I have the lack of place. Fine, no complaining about it, okay? So first triangle that we will take ADE and then BDE, ठीक है। ये दो हमने ट्राइंगल्स ले लिए। तो एरिया, क्योंकि हमको रेशियो में चाहिए तो हम डिवीजन की फॉर्म में लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, हाफ बेस। अब देखो इसके लिए हमको ये चाहिए है AD बेस, ठीक है। तो हाफ बेस AD हमने ले लिया, और अगर बेस हम AD लेते हैं तो हाइट हमारी होगी EN। क्लियर हो पा रहा है? क्या बोला हमने, अगर हम ये बेस ले रहे हैं AD, इस पूरे ट्राइंगल में ये बेस ले रहे हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, EN अपॉन, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं ये, ठीक है। तो हाफ बेस, क्योंकि हमको चाहिए BD, ठीक है, और DB जो भी आप चाहें। अब जरा समझने की कोशिश करो कि इसमें हाइट तो दी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कोई एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर आप बनाते हैं विल बी इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। इसका जो हाइट होगा, इसका जो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इट मस्ट बी इनसाइड द ट्राइंगल। बट सपोज इफ वी हैव एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आप जब इसकी हाइट ड्रॉ करोगे आउटसाइड दी ट्राइंगल, तो वो जो है वो ट्राइंगल के बाहर होती है, ट्राइंगल के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन हो रही है कि BDE इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो आपको इसकी जो हाइट मिलेगी वो इसके बाहर मिलेगी, दैट मीन्स EN, ठीक है। सो हाइट इज सिमिलर, यहाँ पर सेम हाइट हमको यूज करना है EN। ओके, कुछ कैंसिल हो पा रहा है तो प्लीज कर दें, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू मेक थिंग्स easier to
everyone. Okay? क्या बचा सिर्फ ए डी अपॉन बी डी इज नॉट बी बी मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी बी डी चलो कोई एंड कंसीडर दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेना। अब हम सेकंड जो करने जा रहे हैं काम वो ये है, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट triangles ADE and triangle we can write CDE, ठीक है। अब हम यही सेम ट्राइंगल और CDE ले, सेम हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल्स टू हाफ बेस। अब क्योंकि बेस हम ये लेंगे, ठीक है, तो AE अगर हम बेस लेंगे तो उसके लिए हाइट आपकी क्या होगी DM होल डिवाइड बाय, अगर आप ये ले CE, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो हाफ बेस CE और हाइट जो होगा वही ऑब्ट्यूज एंगल वाला प्रॉपर्टी है, it will be outside and similar or the same DM, whatever is getting cancelled, please cancel it to make it simple. An area of triangle ADE upon area of triangle CDE equals to, we'll have AE upon CE. Consider this equation second. Please compare. Do comparison between equation first and second, and you will understand that something we are getting equal, okay, or something we want equal, unless and until we can't compare these two, okay. So for comparison, we will see that in the left side, okay, in the left side if you compare, so area of ADE, okay, equal. But here in denominator we are facing a kind of problem. Area of CDE and BDE ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल हमको मिल जाते हैं तो ये पूरा LHS पार्ट इक्वल हमको मिल जाएगा, ठीक है। और LHS पार्ट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, जो कि हमने 9th क्लास से हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, जिन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, these are two triangles, answer problem, yeah, these are two triangles. If you focus, then DE is the common base for both the triangles, isn't it? And both are lying between the same parallel lines as it is given, ठीक है, ये हमको given था that DE is parallel with BC. So with that property you can write area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE by the property or by the theorem that having same base and lie between same parallels. Okay, FBSP, fine. Having the same base and lie between same parallel lines, that's why these two triangles will have equal area. Now from first, second and third equations, from all these three equations we will get that LHS is equal, so RHS must be equal, and we will have AD upon BD is equals to AE upon CE. ठीक है, या आप इन दोनों को कंपेयर करके एक बार और एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, और यही लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास अभी सेकेंड इक्वेशन में हमने CDE लिखा था, वहां पर क्योंकि अब हमने इक्वल कर दिए तो आप फिर से BDE लिख सकते हो, और इसको चाहो तो आप इक्वेशन फोर्थ बना सकते हो, और देन यू कैन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो
from equation first and fourth, you can understand that LHS are equal, and if LHS are equal, RHS must be equal, and this is what we wanna prove. ओके, इस तरीके से आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। कोई ज़्यादा टफ प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा समझना है। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। ओके, एंड देन द प्रॉपर्टी ऑफ और वी कैन से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंड देन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस क्लास, दैट इज ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड lie between same parallel lines are having equal area. Okay, so here we have finished the BPT theorem. Very important theorem. You can mark it 100 times important. Okay, or the Thales theorem. Find and prove. Just try to solve it at least thrice. कम से कम 3 बार इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और बहुत इतनी टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ओके, then in the next class we will see the converse of this theorem, but before that you should go through this twice. Okay, that's sufficient for today. Thank you so much.